Hello everyone, this is Sakshi from Malerkotla. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So आज ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ. ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ. ਓਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ 100 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ. ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PSPCL ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, SSC ਦਾ ਦੇਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ PSPCL LDC ਅਤੇ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ PSPCL 2019 ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PSPCL LDC ਜਾਂ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਿਆਸ सम्मान 2018. ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ सम्मान ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ. ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਸ सम्मान ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ. ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ सम्मान ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, KK ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਵਿਆਸ सम्मान ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਆਸ सम्मान 2018 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੀਲਾਧਰ ਜਾਗੂਰੀ. ਓਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਉਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ. ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਸ सम्मान ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ. ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ. ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ. ਓਕੇ, ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ. ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ NRIs ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. NRIs ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਉਹ ਨੇ OCI, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ NRIs ਦੋਨੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ. ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ. ਸੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੋ 29th ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 26 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ 25 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ. 5th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਰੋਡ ਟੈਕ. ਓਕੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੋਡਸ. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 30th ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 2019. ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2019 ਦਾ ਉਹ 14th ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, 14th. ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਹੈਲਥ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 70.2 ਈਅਰਸ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 67.4 ਈਅਰਸ. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ.
सो पॉपूलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है दिल्ली दी ते लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश दी। बेसिकली अगर आप दिल्ली दी देखिए पॉपूलेशन डेंसिटी कितनी है 11,320 ओके। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश की देखिए तो कितनी है 17। मतलब दिल्ली दे विच अगर आप पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब नाल देखिए तो उत्थे 11,320 लोग रह रहे हैं ते अरुणाचल प्रदेश दे विच 17 ओके। उस तो बाद इन्फेंट मोरैलिटी रेट है जिहड़ी रूरल एरियाज़ की 37 है तो अर्बन एरियाज़ की 23 ओके। दैन फर्टिलिटी रेट रूरल एरियाज़ की 2.3 अर्बन की 2.5। दैन इस दे अकॉर्डिंग ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न टू पब्लिक हैल्थ ऐसी केड़ी डिजीज़ है ऐसी केड़ी बीमारियां हैं जिहड़ियां कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है पब्लिक हैल्थ दे लई केड़ी ने डेंगू एंड चिकनगुनिया ओके। सो नैक्सट 31st करंट अफेयर है रिगार्डिंग वर्ल्ड सिटीज़ डे। वर्ल्ड सिटीज़ डे कदों मनाया जाता है 31 अक्टूबर नूं। इस साल का थीम की सी चेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशंस एंड बैटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशनस ओके। और तो बाद नैक्सट 32 करंट अफेयर है रिगार्डिंग IAEA। सब तो पहला IAEA के बारे देखते हैं। IAEA का मतलब क्या है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हैडक्वार्टर बेसिकली वियना दे विच है जो कि ऑस्ट्रिया दे विच है ओके। हुण जिहड़ी IAEA है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि ये देखती है कि न्यूक्लियर एनर्जी जिहड़ी है उहदा पीसफुल यूज़ होवे ओके। कोई गलत यूज़ ना किया जाए न्यूक्लियर एनर्जी का इहदा काम ये हुंदा है। हुण ये न्यूज़ क्यों है बिकॉज रीसेंटली न्यू डायरैक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं IAEA दे। उन्हां दा नाम पता होना चाहिए की नाम है रफेल ग्रोजी। वो कित्थे दे ने अर्जेंटीना बिकॉज कई बार पंजाब दे एग्जाम्स दे विच पुछ लैंदे ने ठीक है कि वो किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करते हैं। सो नाल ये भी पता होना जरूरी है कि अर्जेंटीना नूं बिलोंग करते हैं रफेल ग्रोजी ते कौन ने न्यू डायरैक्टर जनरल ने IAEA दे ओके। सो नैक्सट है रिगार्डिंग प्रखार। पेपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रखार रिसेंटली न्यूज़ सी है कि ये बेसिकली दिल्ली पुलिस दी एंटी स्ट्रीट क्राइम वैनस हैं ठीक है। बेसिकली ये राउंड लगाया करनगियां दिल्ली दे विच ताकि उत्थे क्राइम नूं रोकिया जा सके। दिल्ली दे विच आम तौर पर रेप के केसिस हो गए या फिर मर्डर हो गए, उस तो इलावा चोरी वगैरह हो गई ठीक है। मतलब जिन्ने भी क्राइम के मैक्सीमम केसिस हैं वो दिल्ली दे विच ही देखने को मिलते हैं। सो उस चीज़ नूं रोकण दे लई इन्हां ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है एंटी स्ट्रीट क्राइम वैनस का ओके। ये बेसिकली घूमया करनगे ताकि ਜਿਹੜੇ क्राइम्स ਉਹਨਾਂ ਤੇ काबू पाया जा सके। और तो बाद 34th करंट अफेयर है रिगार्डिंग सैकेंड असैम्बली ऑफ ISA। ISA मीनस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तुसी कमेंट सैक्शन च ये दसना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हैडक्वार्टर कित्थे है। बहुत बार मैं तुहानूं दस चुकी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके। सो ये जिहड़ी सैकेंड असैम्बली है उन्होंने कौन होस्ट करूगा इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैन सो 35 करंट अफेयर है रिगार्डिंग प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना। सब तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जिहड़ी योजना है वो किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है HP दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। ये न्यूज़ क्यों है बिकॉज इस योजना के अंडर 2,209 पंचायत्स नूं नैचुरल फार्मिंग के अंडर लैके आया जाऊगा जो कि बहुत ही वधिया गल है ओके। सो ये बारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखियो। एवें आ सकते भी ऐसी किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट है जिहदी स्कीम के अंडर 2000 दे नियर अबाउट पंचायत्स नूं नैचुरल फार्मिंग के अंडर लैके आया गया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की योजना के अंडर ओके। सो किहड़ी योजना का नाम भी तुसी याद रखना है। और तो बाद सो नैक्सट 36th करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स के विच तुहानूं क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा ओके। सो हम देखते हैं की है 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि 18 नवंबर 2019 नूं बननगे उन्हां दा नाम दसो। मीनस इंडिया दे विच हुण न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनन जा रहे हैं। कौन है उन्हां दा नाम पता होना चाहिए है। उन्हां दा नाम है शरद अरविंद बोबड़े ओके। सो इन्हां बारे डिटेल दे विच उदों पढ़ांगे जदों ये बन जाणगे। फिलहाल दे लई नाम याद रखो ओके। सो 37 करंट अफेयर है रिगार्डिंग नीलोप्टोड्स ग्रिटा ओके। ये बेसिकली टाइनी स्पीशीज़ हैं बीटल दियाँ। इन्हां दा नाम है जिहड़ा भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट उहदा नाम क्या है ग्रीटा थंबर्ग ओके। उहदे नाम तो रखा गया इसलिए न्यूज़ सी। सो इन्हां बारे पूछ सकते हैं, याद रखियो। और तो बाद नैक्सट 38 करंट अफेयर है ऐसी किहड़ी एयरलाइन है जिन्हां ने कि अपनी टेल दे उपर एरोप्लेन की जिहड़ी एवें पिछे टेल हुंदी है ना उहदे उपर उन्हां ने एक ओंकार नूं डिपिक्ट किया
किस समान दे विच गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी आ रही है। सो वो ओकेजन नूं मार्क करन दे लई उन्हां ने चीज़ की। सो एयरलाइन का नाम पता होना चाहिए। एयरलाइन का नाम की है? एयर इंडिया। ओके, सो याद रखियो। 39 करंट अफेयर है, ऐसी केड़ी कंट्री की आर्मी है जो कि इंडिया तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदणगे। ओके, सो वो आर्मी का थोड़ा पता होना चाहिए। बेसिकली वो आर्मी है फिलिपीनस की, या फिर एं भी पूछ सकते हैं भी ऐसी केड़ी कंट्री है जी इंडिया तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदू। जिमें मर्जी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण आपां थोड़ा जिहा ब्रह्मोस मिसाइल बारे पढ़ते हैं बिकॉज ये न्यूज़ च बहुत रहिंदी है तो इहदे उपर क्वेश्चनस भी आते ही आते हैं। सो देखो, जिहड़ी ब्रह्मोस मिसाइल है बेसिकली सब तो पहला ब्रह्मोस मिसाइल इज़ अ मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है, पहला फैक्ट। सैकेंड, इनू लॉन्च किया जा सकता है किसी सबमरीन तो, एयरक्राफ्ट तो, लैंड तो या फिर शिप तो। ओके, उस तो बाद ब्रह्मोस मिसाइल है जिहड़ी वो वर्ल्ड दी फास्टैसट सुपरसोनिक मिसाइल है। सिंपल थोनू पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड दी फास्टैसट सुपरसोनिक मिसाइल का नाम दसो की है? ब्रह्मोस मिसाइल। या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मोस मिसाइल केड़ी मिसाइल है? मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल। ओके, उस तो बाद नैक्सट हुण जिहड़ा ब्रह्मोस का नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल का जिहड़ा नाम है ब्रह्मोस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जिहड़ा नाम है वो 2 रिवर्स के नाम तो बनाया गया है। ठीक है, ब्रह प्लस मोस, जिहड़ा ब्रह है ਉਹਨੂੰ बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर है ना इंडिया दे विच, ਉਹਦੇ नाम तो। ते नैक्सट जिहड़ा मॉस है पिछे ब्रह्मोस दे विच मॉस लिता गया है रशिया दे रिवर मॉस्कवा दे नाम तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखियो। ओके, बेसिकली अगर ब्रह्मोस मिसाइल नूं बनाउण दी गल कीती जावे तां इंडिया तो DRDO ने ते रशिया फैडरेशन ने मिल के इहनूं बनाया है। ओके, मैं इत्थे लिख भी दिन्नी है DRDO एंड रशियन फैडरेशन, इन्हां दोनों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल नूं बनाया। ठीक है, कई बार ऐ पूछ लेंगे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ DRDO एंड रशियन फैडरेशन। ओके, नैक्सट 40th करंट अफेयर है रिगार्डिंग एक्सरसाइज। सब तो पहला गल करते हैं आप एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति की टाइप पता होनी चाहिए पहला तो कि जॉइंट मिलटरी एक्सरसाइज है। ठीक है, पेपर च आ जाऊगा कि मिलटरी है, नेवल है, केड़ी एक्सरसाइज है। सो जॉइंट मिलटरी एक्सरसाइज है। उस तो बाद एक्सरसाइज शक्ति जिहड़ी है वो केड़ी 2 कंट्रीज दे विच कंडक्ट की गई है? इंडिया ते फ्रेंच दे विच, यानी कि इंडिया ते फ्रांस दे विच। ओके, उस तो बाद ये कित्थे कंडक्ट की गई? राजस्थान दे विच। नैक्सट जिहड़ा करंट अफेयर है वो है रिगार्डिंग यूकोविरिन 2019। ये बेसिकली ये भी एक जॉइंट मिलटरी एक्सरसाइज है। केड़ी केड़ी कंट्रीज दे विच कंडक्ट की गई? इंडिया ते मालदीव्स। बेसिकली इंडिया ते मालदीव दी आर्मी दे विच इहनूं कंडक्ट किया गया। ओके, उस तो बाद कित्थे कंडक्ट किया गया? महाराष्ट्र दे पुणे दे विच। सो नैक्सट करंट अफेयर है लीडर दसो IS दा। ओके, जिन्हों की US स्पैशल फोर्सिस दे द्वारा मारिया गया सीरिया दे विच। नाम दसो की है? नाम है अबू बकर अल बगदादी। ओके, बेसिकली इन्हें खुद नूं आप ही उड़ा लिया, ये 3 बच्चे भी सी ताकि पकड़िया ना जाए। सो इन्हें खुद ही उड़ा लिया अपने आप नूं। ओके, सो नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये IS का लीडर सीगा, नाम अबू बकर अल बगदादी। ठीक है, आने वाले पेपर दे विच इहदा नाम आ सकता है। सो हुण तुहाडे लई क्वेश्चन है, हुण जिहड़ा अबू बकर अल बगदादी है ये तो मर गया। ठीक है, हुण जिहड़ी टैरोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने अपना एक न्यू लीडर चूज किया है। वो लीडर का नाम तुसीं कमेंट सैक्शन च दसोगे। ओके, सो नैक्सट वीडियो दे विच जिहड़ा पार्ट 3 होगा अक्टूबर का उहदे विच मैं तुहानूं दसूँगी, उन्नी देर तुसीं दसोगे कमेंट सैक्शन दे विच कि वो लीडर का नाम की है। उस तो बाद नैक्सट 43rd करंट अफेयर है रिगार्डिंग 29th बेसिक मिनिस्ट्रल मीट। बेसिकली क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। ये कित्थे होई? बीजिंग दे विच, पहला फैक्ट। तो अगर तुहानूं कोई पूछ ले कि बेसिक का मतलब कि ये केड़ी कंट्रीज आंदियां, बेसिकली ये 4 कंट्रीज आंदियां, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया ते चाइना। ओके, उस तो बाद सो नैक्सट करंट अफेयर है रिगार्डिंग गुजरात फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट केड़ी बनी है? गांधीनगर। एज अ फैक्ट इनू याद रख लियो। ओके, नैक्सट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग डेफकॉम 2019। डेफकॉम 2019 जो है वो कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली दे विच। ते थीम की सी? कम्युनिकेशंस एज अ डिसीजिव कैटलिस्ट फॉर ज्वाइननेस। ओके, नैक्सट चिली ने स्टेट एमरजेंसी डिक्लेयर की है कित्थे? बेसिकली चिली दी कैपिटल है सैंटियागो। ओके, उहदे विच चिली
गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। रीजन क्या है कि उत्थे बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे सी। ओके, नैक्सट 47 करंट अफेयर है, ऐसी केड़ी कंट्री है जिन्हों की FATF दैट इज़ फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट तो बाहर करता। वो कंट्री का नाम है श्रीलंका। ओके, नैक्सट 48 करंट अफेयर है, ऐसी केड़ी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्हों ने LOU दैट इज़ लैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनीसैफ के नाल। यूनीसैफ मीनस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स के नाल कादे लई किया है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन नू अच्छे तरीके दे नाल इंप्लीमेंट करन दे लई। बेसिकली जिहड़ा ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन है इहदे विच सेफ ड्रिंकिंग वाटर हरेक हाउस होल्ड दे विच प्रोवाइड करवाया जाऊगा। बेसिकली इत्थे तुहानूं स्टेट गवर्नमेंट का नाम पूछा है, किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट है? ओडिशा दी। ओके, नैक्सट है 49 करंट अफेयर, इंटरपोल्स जनरल असैंबली 2022 किहड़ी कंट्री नूं होस्ट करूगी? इंडिया। बस इन्ना फैक्ट है। और तो बाद सो नैक्सट करंट अफेयर है रिगार्डिंग सुल्तान ऑफ जोहर कप। ओके, ये बेसिकली कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? मलेशिया के जोहर बहरू दे विच। ठीक है, ये है कि ये बेसिकली इंटरनेशनल मैनस अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। न्यूज़ क्यों है? बिकॉज ये रीसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया तो ये ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया नूं डिफीट किया बाय 2-1 दे नाल। ठीक है, कई बार पूछ लेंगे भी किन्ने गोल्स किते किन्ना हराया, सो तुहानूं पता होना चाहिए। ओके, सो ये सी अज दे करंट अफेयर्स। बाकी होर करंट अफेयर्स आपां नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। ओके, आई होप तुहानूं सारे करंट अफेयर्स समझ आ गए होणगे। ये वाले करंट अफेयर्स नूं बिल्कुल ना छोड़ के जाइयो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अज दे लई इन्ना ही, मिलदे हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।